Namaskar, and Suman Singh here again. Greetings from Suman. And आज मैं जिनके साथ आ रही हूँ, आज एक बहुत ही स्पेशल पर्सन को मैं साथ लाई हूँ अपने, और जैसे कि मैं उनके बारे में कुछ लाइन डेडिकेट करना चाहूंगी बिफोर आई इंट्रोड्यूस हर टू यू गाइस. एंड शी इज नॉट एवरीथिंग दैट हैज हैपेंड टू हर. शी इज एवरीथिंग शी बिकेम व्हाइल शी हील्ड. Stronger but softer, focused but not obsessed, a teacher but still a student. She is not broken, she is beautiful, she is a survivor and a cancer conqueror. She is a belly dancer, model, jury for beauty pageant, actor, swimmer, motivational speaker, social worker for cancer survivors. She is Anjali Gadodia. So guys, here I present Anjali Gadodia from Mumbai, breast cancer survivor, and we call her Zindagi. Welcome, Anjali Gadodia. Thank you, Suman ji. Hi, everyone. Yeah. So how are you doing, Anjali ji? Excellent. Enjoying each moment. So जैसा कि आपको पता है कि हमने आपको इनवाइट किया है आपके जिंदगी को शेयर करने के लिए, तो वी वुड लाइक टू नो कि आपकी जिंदगी कैंसर के पहले कैसी थी. हाउ वाज योर लाइफ बिफोर कैंसर? Yeah, Suman ji. First, I welcome everyone, lovely audience, and lovely Suman ji. Right? Thank you so much giving me this opportunity to talk to my patients, survivors, and all the people who are watching me. I'm a very positive lady and very active and living for each moment. हर पल को जीती हूँ, एक पल नहीं छोड़ती हूँ. मेकअप करो, मस्त रहो, खाओ पियो, स्वस्थ रहो. I believe that. Wow. Before cancer, my life was like a housewife. Like I was a teacher also, but taking care of kids, mother-in-law, husband, and making my beautiful home, earning money, nothing doing for my own body, because there was no awareness for me what is cancer. Okay. पैसे बहुत कमा लिया, घर अच्छा बना लिया, बच्चों को अच्छा पढ़ाई दिया, मास्टर्स डिग्री दिलवा दिया. Everything we work very hard for our family. I wanted to tell, like I am a intercaste marriage lady. मैंने जो गुजराती से शादी की. Okay, yeah. So I want to show my people that कोई कहे ना तो कि ये अंजलि के बच्चे हैं. See, they are done masters. ये अंजलि की बेटी है. So मेरे दिमाग में एक ही चीज था, बच्चों को एक लेवल तक आगे ले जाना. तो आपका पूरा फोकस आपकी फैमिली थी, आप नहीं थी. राइट. या तो जब आपको कैंसर डायग्नोसिस हुआ तो हाउ इट इम्पैक्टेड योर लाइफ? जब आपने इसको इनकाउंटर किया, आपको कैसे पता चला आपको कैंसर है, और जब आप डायग्नोस्ड हुए तो हाउ यू हैंडल, बिकॉज इट मस्ट बी अ शॉक टू यू. यस, थोड़ा दिन ऐसे चक्कर आने लगे. आई थॉट मे बी नॉर्मल, क्योंकि हमारा खाने का शेड्यूल आगे पीछे हो जाता था, बच्चों को देखना पड़ता था. एंड one fine day I saw one lump on my breast, छोटा सा lump that was not movable, then I went to my doctor, physician के पास गई, उनको बताया मुझे चक्कर आ रहा है. And I was very shy to tell him that there is a small gland on my breast. And he asked me, कोई gland है क्या? I said, no, nothing doctor. मैंने ऐसे बोला. तो बोला maybe weakness होगा, go home and take this tablet, you will be fine. I came home, then I checked myself again, there was a lump small. Next day I went again to my doctor. Doctor said, मैंने पूछा था ना कल आपको? मैंने बोला हाँ. And you believe all my memorable day, जो भी मेरा पहला encounter हुआ कैंसर से, that was a Monty Thursday, Good Friday के पहले. Oh. Yeah, and Friday को I went to him, that was a Good Friday. Yeah. And Sunday I have done my biopsy, that was a Easter Sunday. ये 3 memories 2015 का मेरे दिमाग में बैठ गया. Right? Then we are gone for the लेकिन full night I couldn't sleep when I came to know I have a cancer. It was shocking for my family. No, parents side में भी किसी को नहीं है, in-laws के side में, and we are very, Gujarati family, vegetarian food and all, खाने में ध्यान रखना, but not giving time for me. The me time नहीं था मेरे पास. Now I give me time, सुबह देती हूँ अपने आप को टाइम देती हूँ, हमेशा देती हूँ मैं. Yeah. Couldn't sleep. और सो के जब उठती थी ना, oh my God, I got cancer. क्या करूँ? एक ही दिमाग में, full night. My daughter is a teacher. My son was abroad. He was working.
तो उसको तो बताया नहीं मैंने, बेटी को बता दिया, स्कूल से आ रही थी तो आई क्राइड लॉट विथ माय डॉटर फोन पे। वो स्कूल से जब निकलती है ना तो मुझे हमेशा कॉल करती है, मामा मैं निकल गई हूँ। ससुराल में रहती है, देन टू शी इज कनेक्टेड विथ मी ऑलवेज। देन आई They got a स्टार्टेड, bond. या बहुत रोने लगे तो कि मामा डोंट वरी, हम लोग अब्रॉड भी जाएंगे, तेरा ट्रीटमेंट करेंगे, डोंट वरी, विल डू मेनी थिंग्स। हो गया रोना धोना। शी वाज हैविंग स्मॉल बेबी दैट टाइम, छोटी बच्ची भी थी उसको। देन माय हस्बैंड से विल गो टू डॉक्टर, बायोप्सी करा लेते हैं, रिपोर्ट आएंगे तो पता चलेगा। फिर क्या हो गया पता है, फ्रेंड सर्कल्स एंड फैमिली की सपोर्ट से वो फियर निकल गया, चला गया। एक दिन रोना धोना हुआ, नेक्स्ट डे आई फॉरगॉट एवरीथिंग। मैंने यही सोचा मरना तो है ना, छोड़ना, मरना तो है ना, बायोप्सी भी कर लेते, सब कुछ कर लेते। मेरे मन में एक ही था, कैंसर हुआ तो यू आर गोइंग टू डाई, वी आर नॉट अवेयर ऑफ एनीथिंग। ब्रेस्ट कैंसर क्या होता है, कैंसर, और आई यूज्ड टू थिंक जो स्मोक करते हैं, दारू पीते, उसी को कैंसर होता है। हमारे बचपन में यही दिमाग में था। रिपोर्ट आ गया, ऑपरेशन का डेट आ गया। माय ऑपरेशन वाज ऑन 14th ऑफ अप्रैल, दैट इज डॉक्टर अंबेडकर जयंती। सब स्पेशल डेज आपके इवेंट से जुड़े हैं। और इवेंट से जुड़े हुए। ऑपरेटेड, ऑपरेशन के पहले बता दिया गया ऐसा ऐसा होगा। तो बच्चों ने कहा कि रिकंस्ट्रक्शन करेंगे, मम्मा डोंट वरी, देयर आर मेनी वेज एंड ऑल। बट बेटे को भी बुला लिया दुबई से, ही वाज देयर तो आपको वर्किंग। कौन सा स्टेज का कैंसर डायग्नोसिस हुआ आई था? वाज थर्ड स्टेज थर्ड एंड स्टेज। ट्रिपल नेगेटिव। ओह। तो अभी मुझे पता नहीं था ट्रिपल नेगेटिव क्या होता है, थर्ड स्टेज क्या होता है, अवेयरनेस कुछ नहीं था। हाँ, कैंसर हुआ है ना, कोई भी स्टेज हो, क्या फर्क पड़ता है, कैंसर ही हो गया ना। ऑपरेशन, डॉक्टर काफी अच्छे अच्छे, मुझे आज भी उनसे जुड़ी हुई मैं, इतने अच्छे अच्छे डॉक्टर्स मिले मुझे, जी अच्छे से मेरा ट्रीटमेंट हो गया, जी। एवरीथिंग डन वेरी नाइसली। कोई तकलीफ नहीं हुई, तकलीफ तो बिल्कुल नहीं हुई है, अच्छी तो तरह स्मूथ एवरीथिंग डन, बिकॉज आई वाज वेरी पॉजिटिव। डॉक्टर्स अच्छे, कीमो अच्छे, सब कुछ अच्छे तरह हो चुका। तो ये जो आपके सेशन थे कीमो के, तो इसमें हमारे बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं और आपका सर्जरी भी हुआ। तो या ये जो बाल का चले जाना और जो आपके बॉडी में इतना मेजर सर्जरी हुआ मैक्सेक्टोमी का, तो इसने आपकी लाइफ को कैसे अफेक्ट किया और आपने इसको कैसे ओवरकम किया? या फर्स्ट कीमो वाज वेरी स्कैरी, बिकॉज वी डोंट नो व्हाट इज कीमो, कैसे देते, क्योंकि मुझे पोर्ट बिठा दिया था यहाँ पे। राइट। पोर्ट ऑलरेडी एक ऑपरेशन हो चुका था, मैंने सुना था पोर्ट से वो लोग मुझे कीमो देंगे। जी आई वॉज वेरी कैरी फर्स्ट टाइम। फिर भी मैं बन ठन के तैयार होके गई, डॉक्टर का हाथ पकड़, डॉक्टर आई डोंट वांट टू डाई, आई नो, आई गिव द डायलॉग्स एंड ऑल, थोड़ा नौटंकी करती हूँ मैं, मस्ती मजाक करती हूँ। डॉक्टर से शट अप, लाई डाउन। और जो पोकिंग हुआ ना पोर्ट पे, माय गॉड, इट वाज वेरी पेनफुल। आंख में से आंसू के आंसू सूख ही गए मेरे। फिर वो चलते रहता है, फिर कुछ फर्क नहीं पड़ता है, देन इट्स राइट। ओके। वो जो जब इंजेक्शन देते हैं ना, दैट वाज वेरी पेनफुल। उसके बाद 3 घंटा 4 घंटा, एंड वी यूज्ड टू कैरी ऑल द टिफिन फ्रॉम होम, दही छाछ अचार रोटी परोठा राइस। मेरी फ्रेंड मुझे लेने आती, क्योंकि माय मदर इन लॉ वाज बेड रिटन, शी वाज 95। So my husband used to take care of mother, and my friend used to come for the chemo, and she used to take in the hospital और घर पे ड्रॉप करते थे। So it was very painful। और जब यूरिन जाते थे ना, तो रेड कलर की यूरिन होती थी, रेड कलर की, क्योंकि रेड कलर की कीमो होती थी ना, एक रेड एक येलो, दे आर डिफरेंट कलर्स यू रेड नो। एंड व्हाइट या? हाँ, एक येलो भी होता है मैम, येलो भी होता है, ओके। पता नहीं कुछ कुछ मिक्स करके। मैंने वाला जिंदगी में कभी शरबत डिपेंड्स नहीं ऑन आपका ट्रीटमेंट क्या प्लान हुआ है जी। पिया, उसके ऊपर। फिर जब इंजेक्शन वगैरह हो जाता थे ना, बाल तो पहली बार बाल तो गए नहीं, तो मैं घर पे आके बोली मैं बहुत खुश हूँ, मेरे बाल तो गए नहीं अभी तक, 3-4 दिन हो गए बाल नहीं गए। तो किसी ने कहा कि 2 कीमो के बाद जाएंगे बच्चा, वेट कर। मैंने बोला ठीक है। फिर 22 दिन के बाद वापस साइकिल आता है कीमो का, 21 डेज के बाद वो लोग चेकअप करते हैं कि मेरा सब बराबर है क्या, ब्लड रिपोर्ट। एंड बाय टचवुड मेरे सब रिपोर्ट्स अच्छे आते थे, क्योंकि खाने पीने में बहुत ध्यान रखती थी मैं घर पे, पानी पीती थी, दवाई टाइम पे लेती थी, मेडिसिन तो बहुत होते थे वो टाइम पे, 6-7 गोली सुबह आई में, नो। फुल डे दवाओं में हम लोग फुल जीते थे। बोल 3-4 डेज आपको भर के खाना है। यस यस, वही होता था। बट सेकंड कीमो आई वाज नॉट स्कैर्ड। मैं रात को बैठ के, जब 3-4 दिन मेरे कीमो के हो जाते थे ना, थोड़ा वीकनेस लगता था, लेकिन आई वाज वेरी, सो जाती थी मैं, राइट। खाना वाना खा लेती थी। बट आई यूज्ड टू वॉच यूट्यूब में सब, ग्लोबल में जिसको कीमो, अरे सॉरी, कैंसर हुआ है वो कैसे जीते हैं करके। आई सॉ देम, दे आर सो ब्यूटीफुल, विक्स पहनते थे, फुल मेकअप करते थे, बड़े बड़े इयररिंग्स, कपड़े इतने अच्छे पहनते थे, और सीधा कीमो में जाते थे। मैंने भी सोच लिया मैं भी ऐसे करूँ ना, तो आई स्टार्टेड डूइंग द सेम, फॉलो द सेम थिंग। मेकअप करना आता ही नहीं था,
Being a teacher, I was very a simple lady, you know, लंबे बाल, कुछ नहीं लगाती, खाली लिप ग्लोस लगाती, that's all. वॉच पहनना और अपने पंजाबी ड्रेस और दुपट्टा उड़ के जाना, that was my uniform like. फिर हमने ये सीखा कि हाँ जीना है अच्छी तरह तो जी लूं ना, मेकअप करके, हेयर स्टाइल करके मस्त होके जी लूं. बंडाना मंगाए मेरे बेटे ने दुबई से, मस्त मस्त बंडाना पहनती, गॉगल पहनती, बड़े बड़े हील्स पहनती, अच्छे अच्छे कपड़े पहनती. फिर जब हॉस्पिटल के अंदर एंट्री मारते तो गाउन पहन लेती थी मैं, क्योंकि पोर्ट में डालना पड़ता था ना वो. राइट राइट. देन इट वाज लाइक अ पार्टी टाइम, यू नो. कुछ नहीं, मैंने यही सोचा मरना तो है ना, लेकिन मस्त होके जीव ना, लोग तो याद करेंगे वाह कीमो में गई है. नर्स सोए या आया बोलती इसको कुछ होता नहीं है, ये बहुत मस्ती करती है, क्या क्या करते रहती है. मेरी फ्रेंड बोलते नहीं वो वैसे ही है. एंड आई टू टेल देम, यू नो, मुझे रूम देना, मिरर वाली रूम देना, बिकॉज वाइल गोइंग आउट टू पुट अप्लाई माई लिपस्टिक लगाना मुझे. और मस्त तैयार होके चली जाती थी. कीमो ऐसा गया ना, लाइक यू नो, वेरी हैप्पीली, कोई तकलीफ नहीं, कुछ नहीं. एंड आई वाज सो हैप्पी कि रिपोर्ट भी अच्छे आते थे. और ऐसे मेरे 6-7 कीमो हो गए. So you chose to not to behave like a patient, but you chose Yeah. to live a normal by grooming yourself, dressing up, and Yeah. doing the makeup like वो आपको क्या हेल्प करता था पॉजिटिविटी क्रिएट करने में जब आप ये सब तैयार होके जाते थे? और या मैं तो इतने शॉपिंग करती थी पता है, मेरे बेटे को दुकान में ये टी शर्ट दिला, वो बंडाना दिला, ये दिला, वो दिला. यू नो, जब एक कीमो आता है वो रिपीट नहीं करती थी मैं कपड़े. सेकंड कीमो में वो नहीं पहनती थी, कुछ और नया. वो भी इयररिंग्स भी चेंज करती थी मैं. समथिंग न्यू आई वांटेड. और जैसे ही मैंने हॉस्पिटल में एंट्री मारा ना, आई टेक द सेल्फीज. और वहां पूरे कैंसर पेशेंट है ना, फाइल लेके बैठे रहते डॉक्टर को मिलने के लिए. राइट. दे यूज्ड टू लुक एट मी, यू नो. लेकिन वो देखते थे इसके सिर में बंडाना, मतलब कैंसर वाली है, तो मैं सबको ऐसा हाय करती थी, लेकिन किसी के मुंह में ना स्माइल नहीं होती थी, बिकॉज दे आर इन द टेंस. Yeah, डॉक्टर they are stressed, afraid. Yeah. रिसेप्शन के पास जाती थी, वो मैम आप आ गई, मैं बोली यस, चल फोटो निकाल. वो निकालती थी मेरे साथ. फिर हम ऊपर जाते थे, अपने रूम में जाते थे, देखते थे रूम कैसा है. अगर गंदा तो बोलती ये रूम नहीं चाहिए मुझे, दूसरा रूम दो. दे टू शिफ्ट मी. और वेरी स्मूथली, हैप्पीली, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, कुछ तकलीफ नहीं. हाँ, 2 days आई हैव टू टेक रेस्ट. सो जाती थी मैं. बाद में खाने पीने में ध्यान, मस्ती करना, बच्चों से खेलना, हस्बैंड के साथ मस्ती करना. फिर सेकेंड थर्ड कीमो के बाद जब मेरे हेयर जाने लगे, दैट वाज द पीरियड, माय गॉड. वो वक्त मैं भूल नहीं सकती हूँ. घर पे कोई नहीं था. माय मदर इन लॉ वाज स्लीपिंग, हस्बैंड बाहर गए, बच्चे बाहर गए, मैं बाथरूम में नहाने गई. यू नो, कीमो के टाइम में 3 बार नहाती थी, आई टू टेक बार, क्योंकि मेरे बॉडी से स्मेल आती थी मेडिसिन की. My God. यू नो, अलग ही स्मेल आती थी, तो 3 बार नहा लेती थी. एक दिन शाम को मैं नहाने गई, तो मैं शावर जैसे सिर पे गिरे ना, तो बाल ऐसे झड़ने लग गए. मुझे एकदम, यू नो, गूस बम्स आ गए, ये क्या हो रहा है, कभी यहाँ से निकल रहे, कभी यहाँ से निकल रहे. मैंने शावर बंद किया, टॉवल हाथ से पोंछा और मैं गई बाहर. मेरी फ्रेंड जो मेरे साथ कीमो में आती है ना, उसको कॉल किया मैंने. अरे यार सुजू, इज अ टफ टाइम, माय हेयर इज फॉलिंग, और गुच्छे गुच्छे निकल रहे. बोलती है काम कर, प्लास्टिक की थैली ले ले और उसमें डाल दे, फेंक दे. वो भी बहुत पॉजिटिव आपको थी. पता था कि बाल गिरेंगे, your hair will fall during chemo? Were you aware? यस यस. But like when it was happening, it was shock. या नहाते टाइम गिरेंगे मुझे नहीं पता था, मुझे लगा पिल्लों में गिर जाएंगे, कंघी के टाइम आ जाएंगे. लेकिन ये जो निकले, फिर मैंने ऐसे ऐसे खींचने लग गई, सब मुझे गुस्सा है ना, मैं सब निकालने लगे, तो पूरे निकल गए, अपने आप निकल गए. मुझे Okay. आया गुस्सा कि पागल लग रही, इधर से बाल नहीं है, इधर से बाल नहीं है, उसे बेटर है मैं सभी खींच डालू ना. और पूरा डाल दिया. उसके बाद मैंने स्कार्फ बांधा, लेकिन इतनी ठंडी लग रही थी सिर पे, जब बाल चले गए ना, ठंडक लग रही थी. एक एक्सपीरियंस, यू नो, व्हेन योर बाल, यू नो, पूरी हवा सिर में लगती थी. फिर मैंने अपना बंडाना पहनना चालू किया. थोड़ा दुखी हो गई, लेकिन मैंने सोचा कोई बात नहीं. फिर आईब्रो जाने लगे, आई लैशेस जाने लगे, यू नो, शरीर के पूरे बाल ही जाने, जैसे वी आर लाइक अ स्मॉल बेबी. Right. Right. एंड माय हस्बैंड इज टू टेक केयर ऑफ मी लाइक एनीथिंग. हस्बैंड, बच्चे सब मेरा ध्यान रखते. तभी तो बहू नहीं थी, मेरे डॉटर. माय हस्बैंड इज टू मसाज माय हेयर एवरी डे, कोकोनट ऑयल से, सुबह के टाइम नहाने के बाद. Head year. यस. तो उन्होंने एक मोल देखा मेरे सिर के पीछे. उन्होंने कहा तुझे तो तिल है सिर में. मैंने बोला वाह, मेरी माँ ने कभी नहीं बताया मुझे तेरे सिर पे तिल है, तुमने इवेंट इन्वेंशन कर लिया, अंजलि के सिर पे तिल है करके. देन आई से ओके, अभी हो गया. एंड दिस थिंग इज गॉन. नो, दैट टाइम यू लुक वेरी अगली, यू नो. तभी मैं आईब्रो पेंसिल कुछ लगाती नहीं थी. आई शुड नॉट अप्लाई एनीथिंग. Okay. जैसा है रहने दो, दिखने दो जैसा है. घर में करती थी मेकअप करके, घर में बैठ के नहा धो के तैयार होके, लेकिन बाहर जाते मैं नहीं करती थी. आई शुड नॉट लुक एट एनीवन. अपना तैयार व्यार होके चली जाती थी. लोग मेरे पर हंसते भी थे, हंसने वाले भी बहुत थे.
जब मेरे बिल्डिंग से गेट से जाती, so many people laughed at me. It's okay, टाइम है ना, वक्त है. Today nobody laugh at me. Today they look at me, wow, what dress, क्या ड्रेसिंग करती है, कैसे रहती है. वो वक्त भी निकल गया ना. राइट राइट. So I want to tell them, पेशेंट्स को, डोंट, हिम्मत मत हारना, ये तो जाना ही जाना, बाल तो वापस भी आ जाएंगे. राइट अच्छा सा आईब्रो आ गया, आई लैशेस आ गए, बाल आ गए, लंबे लंबे बाल आ गए. राइट. Those days are gone. वक्त होता है इंसान का, राइट. कभी वो बोलते हैं ना, हम रोलर कोस्टर पे थे, कभी ऊंचा कभी नीचा, ये वक्त भी निकल गया. राइट. दिस वाज माय कीमो का फेस. जब आपका सर्जरी हुआ तो हाउ यू हैंडल, बिकॉज दैट वाज अनदर बिग चेंज. यस. क्योंकि हेयर तो वापस आ जाएंगे. यस यस. ये इस चेंज को आपने कैसे हैंडल किया? आई नो इट इज अ वेरी टफ क्वेश्चन आई एम आस्किंग यू. नो इट्स ओके, सबको जानना जरूरी है जी. क्योंकि डॉक्टर ने ये बताया था कि हम लोग रिकंस्ट्रक्शन करेंगे आफ्टर Right. द ऑपरेशन, और फॉर सर्टेन 2-3 मंथ्स विल डू दैट. So how you handle mastectomy? या जब मुझे ले गए, मेरी फ्रेंड्स आई थी हॉस्पिटल में, मेरा हस्बैंड, माय किड्स, सो मेनी फ्रेंड्स आर कम. मेरे पहले वो लोग आके बैठ गए कि अंजलि की आज सर्जरी है करके. आई वाज इन बोरीवली, राइट, हॉस्पिटल में. डॉक्टर रेखा शाह, शी ऑपरेटेड वेरी नाइस. अंदर ले गई मुझे, अच्छी तरह बात करने लगे, अच्छी अच्छी बातें करने लगे, और मैं हो गई अनकॉन्शियस, ऑपरेशन हो गया. जब मुझे बाहर लेके आया तो मैं देखा इतने सारे लोग हैं, मेरा क्या हुआ मुझे कुछ पता नहीं चला. आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, क्योंकि यहाँ पे बैंडेड होता है, पट्टी बांध के रखते हैं थोड़े दिन के लिए, और वो ड्रेन बॉक्स भी लगाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, बाबा जी का जो डब्बे होते हैं ना, हम लोग उसको बोलते हैं, व्हाट वी कॉल दैट, डमरू डमरू डब्बा. वो लगा के रखे. 3 दिन हॉस्पिटल में रही. बट डॉक्टर सेड वन थिंग टू माय हस्बैंड, योर मिसेज इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी. कुछ अलग ही है वो, ये दुनिया की बंदी नहीं है वो, इसमें कुछ अलग ही कुछ है करके. आई डोंट नो व्हाट शी नोटिस्ड, क्योंकि वो जो पूछते गए ना, मैं बोलते गई उसको, तो उसको लगा इतनी पॉजिटिव, मैंने आज तक कोई पेशेंट नहीं देखा इस ऑपरेशन के टाइम. शी वाज सो बिंदास, शी वाज टेलिंग एवरीथिंग. लेकिन उसके बाद 3 दिन का जब मेरा डिस्चार्ज हुआ, मुझे ड्रेसिंग के लिए जाना पड़ता था, तो मैं ड्रेसिंग के लिए जाती थी. तभी भी मुझे कुछ पता नहीं चला कि ये थिंग इज गॉन, दे रिमूव दिस. वो मेरे ख्यालों में नहीं था, बिल्कुल नहीं था. जब बैंडेड निकाल दिया, और जब इंजेक्शन से जो वाटर जो निकालते हैं ना, जो ड्रेन जो बचा खुचा, वो सब हो गया. देन एट द मोमेंट आई थॉट, ओ माय गॉड, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया. पहले नहीं सोचा मैंने. जब वो पट्टी वट्टी निकाल दी, बस ये क्या हो गया, अब कैसा होगा. देन शी टोल्ड मी विल डू रिकंस्ट्रक्शन. घर में आके समझाया कि हिप से स्किन लेके करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे. मैंने ना बोल दिया. आई सेड नो, आई विल नॉट डू दैट, बिकॉज अगर अनदर वन मोर पेन आई डोंट वांट. क्योंकि मेरा एक ऑपरेशन और बाकी था, पोर्ट निकालना था ना मेरा कीमो के बाद. चीर फाड़ तो बहुत हो गया शरीर में, राइट. और एक और करना था. तो मैंने सोचा, डॉक्टर को ये कहा कि मैं सोच के बताती हूँ. देन शी कॉल मी 15 days 20 days बुलाने लगी. शी इज फाइन नाउ, शी कैन गो एवरीवेयर. खाने पीने में ध्यान रखना, एक्सरसाइज थोड़ा बताया उन्होंने, ये सब करना. आई फॉलो ऑल द एक्सरसाइज, खाने में भी ध्यान रखा, सब कुछ किया मैंने, सब अच्छी तरह हो गया. देन माय सन आस्क्ड मी, मम्मा चलना है ना, ऑपरेशन करना है ना. मैंने से आई विल नॉट डू दैट, क्योंकि अब मेरे में ताकत नहीं है सब ये करने का. एंड आई एम 54 दैट टाइम, 54. मुझे अभी जरूरत नहीं है, बच्चे भी बड़े हो गए, सब हो गए. करूंगी मैं फैशन वैशन, देयर आर सो मेनी वेज टू डू दैट, लेकिन अपने शरीर को क्यों तकलीफ दूं मैं. या ये सब हो गया, कीमो खत्म हो गए. डॉक्टर से योर कीमो इज ओवर नाउ, साउंड क्लोज, यू कैन गो इनसाइड, अरे सॉरी, यू कैन गो फॉर द रेडिएशन. मैंने बोला, डॉक्टर आपने तो बोला खाली कीमो है, रेडिएशन नहीं है. आई वॉज शॉक्ड. उस दिन रात पूरा सोई नहीं. माय गॉड, मैं बोली अभी वो वेल्डिंग मशीन जैसा लगाएंगे मुझे, वापस स्प्रे जैसा आग लगाएंगे, क्योंकि मैंने देखा है यूट्यूब में वगैरह कैसे करते करके, मैं तो जल जाऊंगी, मेरी तो हालत हो जाएगी. देन से टुमारो यू गो टू हॉस्पिटल एंड टॉक टू दिस डॉक्टर. अपॉइंटमेंट लिख के दिया. डरी 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 हॉस्पिटल में गई. आई सॉ सो मेनी पेशेंट सिटिंग, क्यू में बैठे हैं, सब थके मांदे हैं, सब वीक है, और सबके सिर दिमाग में एक स्ट्रेस दिख रहा था. तो मैंने क्या किया, मैं इनको बोली, मेरे हस्बैंड को, चलो हम लोग यहाँ बैठ जाते हैं, अपना नंबर आएंगे तो कॉल करेंगे. तो मैंने वही बंडाना स्टाइल, लिपस्टिक, गॉगल, बड़े बड़े हील्स, अच्छे कपड़े पहन के बैठी. द डॉक्टर केम आउट, डॉक्टर जस्ट केम आउट एंड ही से हेलो. मैंने भी हेलो किया. तो माय हस्बैंड आस्क्ड मी, यू नो हिम. आई सेड नो. तो तू क्यों हेलो की. मैंने, उन्होंने किया तो मैंने किया. मैंने बोला शायद, बाद में मैंने उनको बोला, क्योंकि ये सब स्ट्रेस वाले लग रहे थे बेचारे, थके मांदे.
उनको लगा फ्रेश लेडी आई है, इसको मैं अच्छी तरह वेलकम करूं, इसलिए उन्होंने हाई किया मुझे। एंड आई वेंट इनसाइड, मुझे बोले लेट जाओ, चेक किया, सब कुछ किया। तो मैं घबराई हुई थी। मैंने ये सोचा कि अभी तो मुझे रेडिएशन अभी कभी देंगे, आज ही देंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। गाउन वाउन रेडी था, लटका हुआ था वहां पे सब। तो उन्होंने कहा आपको रेडिएशन की जरूरत नहीं। सो मैं आंसू आने लगे मेरे और मैं रोने लगी। मतलब व्हाई यू आर क्राइंग? मैं बोले हैप्पीनेस का टीयर्स डॉक्टर। तभी मुझे याद नहीं उनके साथ फोटो क्लिक करूं क्योंकि वो टाइम डरी हुई थी ना। Then I came home, I prayed to God, भगवान मेरा सब कुछ अच्छा हो गया, खाली मुझे 3-3 महीना पे फॉलोअप के लिए जाना पड़ेगा, that's all. Wow. So this way I came out from this. लेकिन पोर्ट अभी भी है यहाँ, मतलब वो वक्त रेडिएशन के जो गई थी ना, yeah. That time. then what I have done, मैं क्या करती थी, ऑनलाइन बैठती थी, कुछ कुछ चेक करती थी। तो उसमें ग्रुप आया 50 यंग मेंबर्स करके कुछ आया, तो मैंने अपना रजिस्टर किया। तो उनका एक डांस का ग्रुप था, आ जाओ बोला। मेरे सिर में बाल नहीं, छोटे छोटे बाल, पूरी काली काली हो गई थी, यू नो, बिकॉज ऑफ दिस मेडिसिन एंड ऑल। हाथों में जान नहीं, यू नो दैट, हाथ नम हो गया था। और इतनी फुली हुई थी, गाल इतने बड़े बड़े, जैसा कोई कैंसर पेशेंट होते सेम वैसे ही। कुछ अच्छी नहीं लग रही थी मैं अपने आप को, मैं देखती हूँ उस टाइम। उन लोग क्या करते थे पता है, मुझे पीछे डाल देते थे डांस में। रिहर्सल के टाइम आगे रखते थे और शो के टाइम पीछे डाल देते थे, बिकॉज मेरा मूवमेंट अच्छा होता था, बट आई वॉज नॉट लुकिंग गुड। मैं आस्ते 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 वो सब छोड़ 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 के आगे 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 निकल के टुडे एक मुकाम तक पहुंचू, उनको मुड़ के देखती नहीं अभी मैं। लेकिन मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा, लाइक यू नो, सीखा तो सही ना। What were your learnings when you were facing these challenges post cancer treatment? जैसे आप बोले, आपने फिर बहुत सारी चीजें सीखी, आपने बेली डांस सीखा, आपने स्विमिंग सीखा, तो जब आप ये challenges face, कैसे आपने उसको overcome किया जब when you were facing all these challenges? My hand was numb, right? मेरा हाथ तभी नम था, तो हाथ को अच्छा करने के लिए मैंने पोल डांस ज्वाइन किया। डू यू बिलीव? पोल डांस। दो आई डोंट हैव वन ब्रेस्ट, मैं बोली मैं करती हूँ, ये लोग करते, मैं क्यों नहीं कर सकती। मैंने सेलिब्रिटी के पास, बॉलीवुड के सेलिब्रिटी के पास मैंने पोल डांस सीखा। बहुत अच्छा मूवमेंट, कैबरेट टाइप, एवरीथिंग आई लर्न वेरी नाइसली, टॉट मी। लेकिन मुझे ऐसा लगा your hand flexible, वो होने के लिए, लेकिन मुझे ऐसा लगा इतना पैसा बहुत, दैट टाइम फीस वाज वेरी हाई। 5 क्लास के 20,000 थे, मैं देती थी। काफी सीखा मैंने। wow. 4 क्लास के 20,000, फिर अगेन 4 क्लास के 20,000 देते गए, करते गए, बहुत कुछ सीखा। मूवमेंट है, हेलन का मूव, वो ये सब सीखा मैंने। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि दिस इज अ प्राइवेट शो, दिस इज नॉट अ पब्लिक शो। तो उसका मतलब ही नहीं ना। अगर मैं पब्लिक को अभी आप लोग को मैं पोल डांस करके नहीं बता सकती, तो मतलब ही नहीं ना। ऑडियंस को कुछ बता नहीं सकती, मेरे कैंसर पेशेंट्स को बता नहीं सकती। देन आई जॉइन फोक डांस। शी वॉज माई टीचर, शामली शाह। उसने मुझे नीचे बैठना सिखाया, ऊपर उठना सिखाया, कुछ नहीं आता था मुझे। एंड मेरे को डिस्ट्रिक्ट लेवल पे फर्स्ट प्राइज मिला। Wow. राजस्थानी डांस में कंपटीशन में शी सेंड मी। बिकॉज ऑफ हर आई कुड स्टैंड, आई कैन डू ऑल फोक डांस का मूवमेंट एंड ऑल। उसके बाद स्विमिंग ज्वाइन किया। उन्होंने मुझे स्विमिंग डाइविंग सिखाया। एट द एज ऑफ 55 आई लर्न स्विमिंग। तो मुझे स्विमिंग का कोच भी ऐसा मिला था जो मुझे नेग्लेक्ट करते थे, बिकॉज आई से आई एम ए सर्वाइवर। 2 महीने का जो ट्रेनिंग होती है ना, 1.5 महीने की, उनके साथ ग्रुप में डाल दिया। फन, मेरे पर फन करते। मैं पानी से बहुत डरती थी, मुझे नहीं आता था। फिर एक दिन एक कोच जा रहा था, मैंने उसको पूछा सर आप मुझे सिखाओगे, मुझे कुछ नहीं आ रहा। बोलता यस, आप मेरी मम्मी की तरह सिखाओ। डू यू बिलीव 15 डेज में उसने मुझे स्विमिंग का पूरा टेक्निक सिखा। द पीपल यू मेट, यू मेट double time. It's a big thing. You've gone under the surgery of lymph nodes and then you made an effort to learn swimming. That's a very big, inspiring, quite inspiring, I'll say. Yeah. और 1 महीना हुआ नहीं स्विमिंग को। He took me on the 3rd floor ऊपर से, और मुझे बोलता है तू जम मारेगी ऊपर से। मैंने बोला हाँ। बोलता आप तो डरती नहीं ना किससे भी। तो माय हस्बैंड वाज इन द शैलो पूल में थे, काफी बड़ा पूल है वो हमारे यहाँ का, 18 फीट का है। बोला चलो ऊपर। मैं उनके साथ गई बिंदास, बिल्कुल डर नहीं मुझे। और ऐसा ऊपर से जमते, मेरे हस्बैंड को किसी ने बोला अंजलि ऊपर गई है, तो उसने बोला वो मैनेज कर लेगी, डोंट वरी। ही वाज वेरी इजी, लाइक उसको कुछ नहीं होगा। मैं ऊपर से जंप मारी, अंदर गई, बाहर आया, सो हैप्पी कि मैंने कुछ अचीव किया। और वो कोच को मैंने बताया, देखा 1.5 महीने में नहीं सीखा, 3 बार मैंने जंप मारा ताकि वो देखे कि अंजलि देख घड़ी घड़ी ऊपर जा रही है। ना मुझे पानी का छलांग लगा, ना कुछ हुआ। एंड आई केम वेरी नाइसली, आई केम आउट। सो हेड्स ऑफ टू दिस टीचर्स, ऐसे गुरु हमको मिलते हैं। उसके बाद मैंने बेली ज्वाइन किया। आई हैव डन तहसीन डांस, तहसीन बम शेकिंग डांस।
So from pole to folk to swimming to now belly. Yeah, ना फिर सुनो तैशिन किया, तैशिन डांस. Oh, तैशिन में Taishin. बहुत किया. That is also not a public show, right? Oh. तो मैंने उसको ड्रॉप कर दिया. वो ड्रॉप कर दिया. फिर I joined belly. I will thank to my belly teacher मृतिका दत्ता, जिसने मेरा पूरा बॉडी हिलाना सिखा दिया. What is shimmy? What is challenge accept किया उसने. You know, other teachers मुझे ध्यान नहीं देते थे, ग्रुप में डाल देते. She told me I will take the challenge. Within 6 months, she made me a belly dancer. She taught me all the techniques. कैसे शिमी करना, कैसे मूवमेंट को. आज मेरा हाथ काम नहीं करता है, बट आई डू स्नेक आर्म्स वेरी नाइसली. शी टॉट मी. शिमी सिखाया मुझे, एडवांस लेवल पे सिखाया. शी मेड मी अ डांसर. उसकी मैं कलकत्ता शो भी जाएगी. एंड आई हैव जॉइन विद अ फ्लैमिंगो डांस आल्सो. वाओ वाओ. फ्लैमिंगो डांस वो है ना जो सेनोरिटा वाला. राइट राइट. आई गे वन, एक लेवल मैंने किया, शो भी किया कलकत्ता में. अभी नवंबर में मेरा बेली का वापस शो है. वी आर गोइंग, टिकट बुक हो गई है मेरी. आजकल वो रिहर्सल चल रही है. 4-5 आइटम्स करने वाली हूँ मैं. सोलो ग्रुप सब करने वाली मैं. सो या हेलन क्लाल डांस कर रही हूँ, थोड़ा बेली कर रही हूँ. So these are the platform I got from. What about modeling? You also like you have achieved a lot of recognition in modeling. So Yes. would you like to tell about your that journey? So many things you were doing after going through such a huge surgery and Yes. like, you know. This is 2019 after my recovery. तो मैंने डॉक्टर को बोला मेरा पोर्ट निकाल दो ना प्लीज, क्योंकि मुझे तकलीफ होती है. एक्चुअली मुझे डांस वांस करना था. तो उन्होंने बोला थोड़ा 1 साल तो रखना पड़ेगा. मतलब प्लीज डॉक्टर निकाल दो. बोल वो फेसबुक फॉलो करती है, मेरी डॉक्टर देखती मुझे. एंड सी इज वेरी हैप्पी कि अंजलि ऐसा आती करती है एक्टिव. शी ऑलवेज कॉल मी माय सेलिब्रिटीज कम ना जब मैं चेकअप को जाती हूँ. वेरी स्वीट डॉक्टर. और मैं 2019 में फॉर्म भरी मिसेस इंडिया का, ब्यूटी पेजेंट का. आई से चलो ट्राई करती हूँ. मिसेस इंडिया. वीजे मिसेस इंडिया 2019-20. Wow. And no cancer survivors, normal girls, all normal ladies and girls. Only you cancer survivor. Yes. Wow. तो मैं गाउन भी नहीं पहनती थी, छोटे सा कुछ भी नहीं. मुझे पता ही नहीं गाउन क्या होता है, क्योंकि हम ऐसा फैशन करते ही नहीं थे ना पहले. एक टीचर, एक घरेलू लेडी. तो वहां पे गई तो मैंने देखा लड़कियों की नेल्स बड़े बड़े हैं, ऐसे मेकअप करती है. मैं तो कुछ भी नहीं कर रही, ये लोग के सामने तो मैं कुछ भी नहीं हूँ. दे आर वेरी एडवांस. लेकिन जब मैं स्टेज पे गई, जब मेरा रैंप वॉक हुआ, टैलेंट राउंड हुआ, सब कुछ में मैं निकल गई. When I went for the question answer round, तो उन्होंने मुझे 2-3 क्वेश्चन, डायना हेडन जी ने मुझे क्वेश्चन पूछा, मैंने जवाब दिया. एंड इट वाज स्मॉल फ्रॉक, मैं रेड कलर का छोटा सा फ्रॉक थी. उन्होंने मुझे गाउन दिया दैट वाज फुली ओपन. तो मुझे वो पहनने मैंने नहीं आता था, और मुझे लगा मेरे लिए नहीं है. मैंने बोला ये नहीं पहनूंगी. तो क्या आप क्या पहनोगी? मैं बोली मेरे पास फ्रॉक है, मैं पहनूंगी. बोला श्योर यू आर कंफर्टेबल? आई से यस मैम आई एम कंफर्टेबल. मैं स्टेज पे गई, क्वेश्चन आंसर राउंड दिया, और उसने जो अनाउंसमेंट किया, सब टाइटल मुझे मिला. सभी को नहीं मिलते सब टाइटल, कोई किसी को तो क्राउन भी कुछ नहीं मिलता है. अंजलि गडोया फॉर द मिसेस इंडिया आयरन लेडी. ओ माय गॉड, मैं खड़ी थी लाइन में. मैं फिर भी सोच रही मेरा नाम अनाउंस किया. आई वेंट फ्रंट, मुझे माइक दिया. क्या बोलना चाहती है आप? मैंने बोला मैं हिंदी में बोलूंगी ताकि सभी समझे. यू नो व्हेन माय वीडियो विल गो, सभी इंग्लिश सभी नहीं समझते हैं. एंड इंडिया इज आवर कंट्री. हिंदी में बोलेगी तो सबको अच्छा लगेगा. आई से आई एम ए सर्वाइवर. तो अदर गर्ल्स वर लुकिंग एट मी, क्योंकि मैं बहुत मस्ती करती. बोलती इसलिए मस्ती करती है, बहुत बहुत धमाल करती थी. रूममेट भी बोल रही थी मुझे. फिर मैंने बोला ये जो क्राउन मुझे मिला है, दिस इज फॉर माय कैंसर सर्वाइवर्स एंड कैंसर पेशेंट्स, बिकॉज आई वांट टू टेल देम you don't fight with cancer, let cancer fight with you, and fight like a queen and win like a boss, how I want. And this crown for you all. और थोड़ा सा tears आया, क्योंकि this was the first pageant मैं जीती थी, लाइफ का फर्स्ट पेजेंट. और बचपन से एक ड्रीम था मुझे कुछ बनना है, लोग मुझे देखे. यू नो व्हेन आई वाज वेरी स्मॉल, तो मुझे ऐसा कैंसर ने आपको ज्यादा इंस्पायर किया, आप कह रहे हैं. यस, आफ्टर कैंसर ऑल दिस जर्नी चल. उसके बाद मैं मिसेस महाराष्ट्र बनी. जो ऑर्गेनाइजर है मिसेस नीता राजन कौल, सी सो स्वीट लेडी, सो स्वीट. उसमें भी कोई कैंसर पेशेंट्स नहीं थे, मैं अकेली थी कैंसर सर्वाइवर, सॉरी. और बाकी सब नॉर्मल लोग थे. उससे मुझे मिसेस महाराष्ट्र लावण्यावती. उसके साथ में बाद में 2 जन को और लेके गए मेरे साथ. नारी शक्ति भी आपने कुछ जीता, राइट? नारी शक्ति अवार्ड तो बहुत जीते हुए हैं. नारी शक्ति, वुमेन पावर, फिर ग्लोबल में भी बहुत मिला है. सोशल एक्टिविटीज का मिला है. सो मेनी थिंग्स आई हैव, सो मेनी क्राउन. सबटाइटल क्राउन, पहला सबटाइटल मिला, फिर राउंड मिसेस राउंड का रनर अप का मिला, देन आई गॉट द मेन क्राउन. नाउ आई एम गोइंग फॉर ज्यूरी.
मैंने प्ले में भी काम किया है, हिंदी प्ले। हमारी एक डायरेक्टर है विवाह रानी जी, शी इज अ कैंसर सर्वाइवर, शी इज अ फैंटास्टिक लेडी। उसने मुझे सोलो एक्टिंग सिखाया, सोलो एक्ट कैसा करना है। उसमें एक आज फिर जीने की तमन्ना है, मुझे अवार्ड मिला उसमें। कहो डॉक्टर ऐसा क्यों, ऑल रियल स्टोरी, उसमें भी मुझे 3000 रुपीज मिले दिल्ली से। और उसके बाद मैंने स्क्रिप्ट लिखना चालू किया, उसमें मैंने खुद अपनी स्टोरी, किसी और की स्टोरी मतलब जजमेंट करके, आज मैं जिंदा हूँ मैंने खुद लिखा क्योंकि उन्होंने मुझे सिखाया। और तीसरा, मैं भूत हूँ। I do something, like. So I'm like so amazed. आपने अपनी पूरी जिंदगी till 50s you were so silently, जैसे कहते हैं ना भूकंप आने के पहले या शांत ज्वालामुखी या silent volcano, you were so quiet, but this encounter totally transformed you to like push एकदम बाहर. And within like just after your cancer journey you did so many things जो आपने इतने साल नहीं किया वो आपने एक बार में पूरा कर दिया, right? Yes. That's the reason behind that so much. सुमन जी, जब मैं छोटी थी ना, I was 3 years old, मैं एक ऑर्फनेज बोर्डिंग में बड़ी हुई। तो वहां पे मुझे बंगाली डांस बहुत सिखाते, हमारे एक घंटे का टाइम होता है एक्सरसाइज का टाइम, और छोटे छोटे शोज में हमको भेजते थे। तो मैं बहुत अच्छी डांसर बन गई थी वहां पे, लेकिन पढ़ाई में एकदम डल थी, मुझे पढ़ाई में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, नो इंटरेस्ट एट ऑल। you're more of artistic. Yeah, artist. और मुझे हमेशा सिस्टर आगे रखती थी, डांस में हमेशा आगे रखती थी, बिकॉज आई टू डांस, दो आई वाज वेरी डार्क फैट एंड ऑल, लेकिन मैं अच्छी तरह करती थी, जो भी करती थी अच्छी तरह करती थी। तो वो टाइम पे मुझे ऐसा सपना था कि मैं बड़ी होके ना कुछ आर्टिस्ट बनूंगी, कुछ हीरोइन बनूंगी, ताकि लोग मुझे देखें। अभी तो मैं छोटी हूँ, हमेशा एक सपना होता था। इवन मैं ससुराल है तभी मैं सोचती मैं कुछ करूँ तो लोग मुझे देखे। टीचर तो है, एवरीबडी नोस शी इज अ टीचर, गुड टीचर करके, लेकिन ऐसा कुछ कर। लेकिन अब मेरा सारे पैशंस पूरे हो गए। पीपल लुकिंग एट मी, स्टेज पे जाती हूँ, मोटिवेशन स्पीकर जैसा बोल के आती हूँ, डांस करती हूँ। सो ऑल ऑडियंस, इतने अच्छे अच्छे ऑडियंस है मेरे, वंस मोर होता है। सो यू फील सो बेटर, यार वंस मोर हो गया, वंस मोर हो गया। अभी ये टीचर, अभी कभी कभी मेरे स्टूडेंट्स मुझे कॉल करते हैं, मिस अभी आप पढ़ाते नहीं हो। मैंने बोला नहीं, अभी मैंने टोटल डायरेक्शन चेंज कर दिया, आई एम इनटू डांस। तो दे आर शॉक्ड, जो दुपट्टे में रहती थी आज ऐसे कैसे हो गई करके। तो दिस कैंसर चेंज माई लाइफ और फुलफिल माई ऑल माई ड्रीम्स। Yeah, wow. सपना देखो, मैं बोलती सपना देखो, लेकिन उसको फुलफिल भी करो। अभी कोई सपना बाकी नहीं रह गया, एवरीथिंग आई फुलफिल्ड, सब कुछ हो गया लाइफ में। अब तो बच्चों के साथ जिंदगी जीती हूँ, घूमती हूँ, पटे। अब मुझे कोई कॉल आता है, चल अंजलि घूमने चला, अभी सैटरडे माय फ्रेंड कॉल मी, चलो चलते हैं घूमने। इस मोमेंट को भी जी लेते हैं। 15 अगस्त में हम आजादी से चले जाते हैं। मैंने हस्बैंड को पूछा, मैं जाऊँ? मेरी फ्रेंड बुला रही, बोला जाओ। वी एंजॉय, वी केम, बड़ा मजा आता है लाइफ में, सो लाइफ इज ब्यूटीफुल आफ्टर कैंसर। what kind of any loopholes and challenges आपने देखे अपनी कैंसर जर्नी में, जो आपको लगता है ये गैप है हमारी कम्युनिटी के लिए जो फुलफिल होना चाहिए, बिकॉज यू ऑल्सो वेंट थ्रू दिस जर्नी, और अब आप इतना सोशल वर्क करती हैं और इतने सारे लोगों से जुड़ती हैं, तो what kind of a gap आपको कमी दिखाई देती है जो खाई है हमारे सर्वाइवर्स के लिए, जो आपको लगता है ये चीज होना चाहिए? एक्चुअली क्या है, नाउ वी आर टॉकिंग, राइट, हम दोनों बात कर रहे हैं। मैं हमेशा सोचती हूँ हम तो खुशी से बात कर रहे हैं। ये मोमेंट में कितने लोग हॉस्पिटल में दौड़ रहे हैं एडमिशन लेने के लिए, कैंसर पेशेंट्स। आई ऑलवेज थिंक लाइक दैट। जब खुशी का माहौल, मैं सोचती हूँ मैं तो यहाँ खुशी कर रही हूँ, लेकिन कितने लोग यहाँ भटक रहे। किसी को कीमो का डॉक्टर नहीं मिल रहा है, किसी को रेडिएशन के लिए अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा है, कोई जिंदगी मौत से लड़ रहा है, किसी की जान जा रही है तो कोई बचाने वाला नहीं होता उसको, किसी को फंड नहीं है, पैसे नहीं है, खाली हम बोलते हैं। आप बिलीव करेंगे सुमन जी, 1-2 साल से मैं अपने घर में पेशेंट लाके रखती थी, एंड आई हैव टू कीप देम फॉर 3 days, 4, जितने भी दिन मेरे घर में खाओ पियो नहाओ धो, तुम जाओ अच्छी तरह जाओ। बिकॉज जो टाटा के बाजू में जो सोते हैं ना कीमो लेके वो लोग, दैट इज ऑल इन्फेक्शन तो होने वाला, ठीक होने वाला नहीं है। हम कैसे बोलते हैं हाइजीन में रहना चाहिए, मेरे कीमो के बाद मैं कैसे हाइजीन में रहे, आप कैसे रहे, राइट? उनको एसी का हवा नहीं लगती है, वो टॉयलेट में सभी जाते हैं, इट इज नॉट हाइजीन, और वापस उनको वापस ही हो जाता है। अभी मैंने खाली मैसेज डाल दिया कि क्योंकि मेरी बहू बच्चे आ गए अभी, थोड़ा वो लोग यहाँ आए, रूम खाली नहीं है, तो मैंने अभी ड्रॉप किया है कि अभी मेरे यहाँ नहीं है, बट वी विल अरेंज समथिंग आउटसाइड। So you're saying the struggle for the people जो बाहर से आए हैं, दूसरे शहरों से आए, उनको रहने को जगह का प्रॉब्लम है। यस, जगह का प्रॉब्लम है और खाने पीने का भी प्रॉब्लम है ना, फ्रॉम वेयर दे ईट।
और उनको अपॉइंटमेंट कभी भी मिलता है, रात को 3 बजे भी कीमो होता है उनका। ओह माय गॉड। कहाँ जाए वो? एक लड़का गांव से आया था, बोला मेरा 3 बजे का कीमो, सुबह 4 बजे का सॉरी कीमो है, तो सीढ़ी पे सोया रहा वो। मैंने बोला वहां गेस्ट हाउस ले लो ना कहीं भी छोटा सा, पैसा नहीं है बोला। सो दीज आर द थिंग। और एक दूसरा प्रोथेसिस का, दोज हु आर गोइंग फॉर दिस सर्जरी एंड ऑल, उनको पहले से अवेयरनेस होना चाहिए कि ये आने वाला ही वक्त, दैट टाइम वी हैव टू यूज दिस थिंग्स, बिकॉज आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ दिस ऑल द एज अ थिंग्स। ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर, मैस्टेक्टोमी के लिए आप बोल रहे हैं, राइट? उनके लिए यस। जी। अभी जैसे है शाइशा इंडिया, वी केयर वाले, दे प्रोवाइड यू दिस थिंग्स। आप आपका सर्टिफिकेट दे दो, ऑपरेशन का डेट बता दो कहाँ का है, दे प्रोवाइड यू, ईयरली का प्रोवाइड करके देते हैं। So you're saying the awareness of resources of process, like, you know, this thing is lacking, right? Yeah, that is lacking. How to, where to get it, and induction, how to maintain yourself after surgery, right? Yes, and That how to awareness. use it also, how to use it, क्योंकि मैं How to स्विमिंग use it, करती हूँ okay. तो स्किन इन्फेक्शन हो जाता है, तो बहुत कुछ ध्यान रखना पड़ता है। यू हैव टू टेक बाथ, हाइजीन रखना पड़ता है, खाने पीने में ध्यान रखो तुम। Right, आई एम 8 years कैंसर फ्री, डजंट मीन आई एम फ्री। वी आर, right. नोबडी इज फ्री, यू नो। वी आर ऑन, क्या बोलते हैं उसको, रिस्क फैक्टर पे ही हैं हम। भले मैं आपसे बात कर रही हूँ, सब कर रही हूँ, बट एक दिमाग में होता है रिलैप्स, रिलैप्स। हाँ, इसको आप कैसे फेस करते हो, कैसे डील ये करते हो? घंटी, फियर ये ऑफ रिलैप्स। या ये घंटी बजती है ना दिमाग में। सपोज मैंने 2 दिन एक्सरसाइज नहीं किया, सीधा उठ जाती हूँ और एक्सरसाइज करने लग जाती हूँ। जो भी एक्सरसाइज है, रोप पे चढ़ना है, किक मारना है, जुम्बा करना है, डांस तो करती हूँ मैं। जी, आई डू माई एक्सरसाइज, 45 मिनट्स का जुम्बा करती हूँ और जी, 20 मिनट्स का मेरा एक्सरसाइज करती हूँ। फिर वो फियर निकल जाता है, जी। क्योंकि खाने पीने में तो हम ध्यान रखते ही है। वार्म वाटर पीते हैं, बाहर का तो कुछ है ही नहीं ऐसा खाने पीने का। वंस इन ए ब्लू मून वी गो फॉर दैट। दीज थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपका पेट भी अंदर जाना चाहिए, Right. मोटापा नहीं आना चाहिए। यू हैव टू मेंटेन योरसेल्फ। आप देखोगी मेरा पेट बिल्कुल नहीं है, क्यों? मैं खाने में ध्यान रखती हूँ, गर्म पानी पीती हूँ। नहीं ऐसा नहीं है, बट आई मेंटेन माई सेल्फ। Right. ना बड़ा बम हो पीछे से, ना बड़ा पेट हो, ना हैवी शोल्डर हो, दिस ऑल द बीमारी का लक्षण है। वेरी फ्रैंकली मैं बोलती हूँ, जो भी सुन रहे हैं ना उनको बता रही हूँ, अपना मेंटेन करो बॉडी को और कीप हैप्पीनेस। जो हार्मोन आती है ना हैप्पीनेस की, तो सारी बीमारी चली जाती है। यस, टुमारो हैव टू गो देयर। और टाइम टेबल बनाओ, यू मेक अ टाइम टेबल एंड You व्हेनेवर make a bucket list, prioritize it, right? मेरा है बकेट लिस्ट। आपको मिलना था, मिली ना मैं, बकेट लिस्ट में आप भी थे। हमारे It's an honor, Anjali ji, for keeping me in your bucket list. so many girls are there in my bucket list. अभी वो कल जो मिली थी उनका नाम क्या था, वापी वाली लड़की, Jikisha. जिगीशा को मिलना था, बकेट लिस्ट में है लेकिन मिल नहीं पाई। मीनाक्षी को मिलना है, मिल नहीं पाई। देयर आर सो मेनी बकेट लिस्ट। अभी जो भी स्टेट में जाऊंगी सबको मिलके आ जाती है, जाती है तो मुझसे बल्कि मिल देती सबको। एक मेमोरी होता है, आई मेट दिस लेडी। और ऐसा अफसोस होता अगर नहीं मिलूंगी ना, कि मैं मिली नहीं, काफी दिन हो गया, बट आई विल मीट एवरीवन। है लिस्ट में नाम है। इस जर्नी से आपने क्या सीखा और आप क्या मैसेज देना चाहते हो बिफोर वी वाइंड अप, अंजलि जी? या What kind of message you would like to give? एक तो है, कैंसर से डरो मत। बीमारी है, आएगी। जैसे हमको बुखार 3 दिन की होती है, 4 दिन की होती है, 1 वीक में पूरी बीमार थी, 1 वीक भी होता है। यू थिंक दैट आई हैव अ फीवर, डोंट थिंक कैंसर हो गया तो मुझे ऐसा हो जाएगा। ये बीमारी से मैं निकल जाऊंगी, शायद 6 महीना लगे, शायद 1 साल लगे, बट दिस विल गो, डोंट वरी। और एक चीज और है, एक ही डॉक्टर रखो, डोंट कीप चेंजिंग योर डॉक्टर्स। एलोपैथिक डॉक्टर, आजकल तो कितने अच्छे अच्छे टेक्निक्स है, अच्छे अच्छे डॉक्टर्स हमारे इंडिया में कैंसर के, कितने Right. अच्छे अच्छे डॉक्टर्स है। फॉलो देम, गो टू हिम, पीपल विल डू द गॉसिप। ये इसके पास जाओ, उसके पास जाओ, डोंट कीप चेंजिंग योर डॉक्टर, स्टक विथ वन डॉक्टर। Especially when you are in a critical situation. यस, एनी सिचुएशन, एक बार आपने Yeah, डॉक्टर पकड़ा है ना, कंटिन्यू विद दैम। yeah, डॉक्टर्स आर yeah. नॉट बैड, दे आर वेरी गुड, दे आर डूइंग गुड वर्क फॉर अस। और एक Yes. ट्रस्ट रखो डॉक्टर के ऊपर, ट्रस्ट रखो कि नहीं मैं अच्छी हो जाऊंगी। और ऑलवेज से आई एम ब्यूटीफुल, आई एम ओके, मुझे कुछ नहीं हुआ, थैंक यू गॉड, जो भी है, लेकिन आप मुझे से रिलीज कर दो। से लाइक दैट। और रात को अपना टाइम टेबल बनाओ। आई एम टेलिंग एवरीवन बिफोर गोइंग टू स्लीप, थैंक गॉड, मेरा, तुम्हारा दिन कैसा भी गया हो, तुमसे मेरा दिन बहुत अच्छा गया आज। और रात को एक टाइम टेबल बनाओ, सुबह मुझे ये करना है, 9 बजे यहाँ जाना है, 11 बजे वहां जाना है, 5 बजे यहाँ जाना है, 8 बजे घर पे आ जाना है। दिस टाइम टेबल यू मेक एंड गो टू स्लीप ना, कोई बीमारी नहीं होगी आपको, क्योंकि यू आर बिजी, यू आर बिजी। और You're अपना खाना, engaged. या यू आएंगे, हाँ, कोई चीज अपने दिमाग में, शैतान, वो बोलते हैं खाली दिमाग शैतान का घर। डोंट गो फॉर गॉसिप। एंड फ्रेंड्स ऐसा रखो जो आपको टाइम पे काम आए। ऐसा नहीं कि घूमने फिरने के लिए फ्रेंड मिला, खाया पिया चला, नो। कीप लिटिल फ्रेंड्स, गुड फ्रेंड्स, फ्रेंड्स आके आपको हेल्प करें।
सो डोंट वरी इफ कैंसर कम्स ऑल्सो, उसके लिए बहुत सारे ट्रीटमेंट, मैं दुनिया में कोई ऐसा चीज नहीं है जिसका सोल्यूशन नहीं है. एवरी प्रॉब्लम हैज अ सोल्यूशन बट टेक्स टाइम. Right. किसी का सोल्यूशन जल्दी निकल जाता है, किसी का 1 साल में. दैट टाइम यू से ओ माय गॉड आई एम सो हैप्पी, मैं ठीक हूँ करके. आई एम सो हैप्पी, आई एम सो ग्लैड कि 7 years कैंसर फ्री हूँ. मैं लोगों को Wow. समझाती हूँ, सब कुछ करती हूँ. आई एम कनेक्टेड विद सो मेनी एनजीओ, उनसे भी मुझे सीखने को मिलता है. You know, doctors are there, caretakers are there, they tells you many things about cancer. अंजलि जी ऐसा है वैसा, हमारे से एडवाइस लेते हैं बहुत जन. हमारे फ्रेंड सर्कल में भी, देखो अंजलि ऐसा हुआ, कैन आई कॉल यू, आई से एनी टाइम. सो कैंसर इज नॉट अ डेथ. Right. रिमेंबर दिस. फाइट, फाइट, यू विल विन जी. मैं तो 110% बोलती हूँ. एंड बी योर सेल्फ लाइक अ ब्यूटिफुल लेडी, नॉट अ सिक पर्सन, नॉट अ कैंसर पेशेंट. कैंसर पेशेंट भी हो ना तुम, वो भी मस्त होके रहो तुम. यू नो, एक तुम्हारे शरीर में इतनी अच्छी हार्मोन आ जाती है. लुक एट योर मिरर एंड से ओ माय गॉड, गॉड हैज गिवन मी आईज. कितनी अच्छी आंख दी है भगवान ने मुझे, बाल दिए हैं, लिप्स दिए हैं, दांत दिए हैं, सब कुछ दिए, मुझे और क्या चाहिए. मैं दुनिया Right. देख सकती हूँ. लोगों के पास आंख नहीं होते हैं. दिस इज व्हाट ब्रेस्ट इज नथिंग. ब्रेस्ट तो इनर पार्ट है हमारा. हम दुनिया तो देख सकते हैं ना. सो ऑलवेज थैंक टू गॉड कि ऐसे जगह पे मुझे कुछ हुआ नहीं. भगवान, भगवान जो भी करे अच्छा कर. एंड माई कैंसर पेशेंट्स एंड सर्वाइवर्स, रिमेंबर वन थिंग, जिंदगी में कभी हारना नहीं, क्योंकि वी आर फाइटर्स. हम तो जंग लड़ने के लिए आए हैं और एंड तक लड़ेंगे. और हमेशा यही सोचो, हमसे बढ़कर कोई नहीं है, हम ही सबसे, वी आर द बेस्ट, वी आर द बेस्ट वी हैव सीन द लाइफ. वो बोलते हैं ना बॉलीवुड में वो हीरोइन इतनी अच्छी है. आई नेवर फॉलो एनी हीरोइंस, आई बिलीव आई एम ए हीरोइन, आई एम ए सेलिब्रिटी. भगवान ने मुझे इतना अच्छा किया है बाल जाने के बाद भी, और क्या चाहिए मुझे. आई कैन डू माई वर्क, आई कैन टॉक, आई कैन गो आउट, फैशन कर सकती हूँ, सब कुछ. उन लोग तो एक्टिंग करते हैं, वी आर नॉट डूइंग एक्टिंग. हम तो रियल लाइफ के हीरोइंस है. और जितने भी लोग मुझे मिले हैं एक्टिंग करियर में, मॉडलिंग में, कितने लोग मुझे मिले हैं, ऑल वे पॉजिटिव विथ मी. मुझे इतना अच्छा बोलते ना, बच्चों की तरह रखते हैं सब. अरे यार, हम हमारे नीता जी बोलेगी अंजलि जी आ गई, अंजलि आ जाए मेरे घर रुकना, अंजलि प्लीज आना मेरे. मैं बोली नहीं नहीं, मैं होटल में ठहरी, मिलूंगी जरूर आप लोग. सी सो स्वीट. और हमारी बेली टीचर हमेशा बोलेगी अंजलि जी ओके टुडे विल डू क्लास. अभी मैं बीमार थी, मैंने बोला मिस आज का दिन रहने तो कल करती हूँ. बोला कोई बात नहीं, कल आ जाना. तो शी अंजलि आर लुकिंग नाइस टुडे. और मैं अच्छे अच्छे कपड़े पहन के डांस करती हूँ. आई बिलीव दैट आई एम अ डांसर, मेरे को डांस करना Yeah, है. you make beautiful reels, you make beautiful videos, you participate in all kind of contests. You're invited in so Yes, many beauty pageants as a judge, and yeah, you're not only beautiful outside, you're also beautiful from heart. You motivate so many cancer survivors. You're always available. So मैं before we wind up, जिस इससे पहले हम अपने सेशन को खत्म करें, आप सपोर्ट ग्रुप की इम्पोर्टेंस को क्या बोलेंगे, लोगों को क्या मैसेज देंगे जो हमारे ग्रुप में मेंबर्स हैं उनको, कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो ग्रुप के मेंबर्स हैं बट दे आर साइलेंट एंड आई एम श्योर दे आर गोइंग थ्रू सम चैलेंजेस. तो जैसे आप लोग थैंकफुली आप लोग पॉजिटिव है, आप लोग आगे आ रहे हैं. आप क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे हमारे ग्रुप मेंबर्स को और हमारे बाकी सर्वाइवर्स को जो जो डील कर रहे हैं, जो हेल्प चाहते हैं बट आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, उनके लिए कुछ मैसेज देना चाहेंगे? यस. सपोर्ट ग्रुप काय के लिए होता है? बिकॉज वी मोटिवेट देम. सपोर्ट ग्रुप में जो भी है, मेरे भी बहुत फ्रेंड्स है, बताना नहीं चाहते मुझे कैंसर हुआ है. सिर्फ जब तक तुम अंदर दबा के रखोगे ना चीजों को, इट विल नॉट कम आउट. तब तक तुम हील नहीं होते हो. यू हैव टू शेयर विद समवन. ग्रुप राइट. इज फॉर व्हाट? टू शेयर योर ऑल बर्डन्स. आपकी जो तकलीफ है, अभी कीमो के टाइम किसको तकलीफ होती है, यू हैव टू शेयर विद द ग्रुप. सो ग्रुप में राइट. इतने लोग हैं जो आपको मोटिवेट करना. आई नो इट इज वेरी डिफिकल्ट. हम बोलते हैं पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव नहीं होता है, सभी से नहीं होता है. बिकॉज उनके माइंड में एक ही चीज होता है, अरे मुझे कैंसर हो, अरे ये फंड का प्रॉब्लम है, ये लैक ऑफ सो मेनी थिंग्स दे हैव इन द माइंड. लेकिन इफ यू शेयर विथ योर ग्रुप, दे विल मोटिवेट यू. आपका, मैं बोलती हूँ ना, अगर आप पर्सनल भी मिलते हो, जैसा बॉम्बे का ग्रुप है, आई ऑलवेज टेल लेट्स मीट ऑल टुगेदर. जब राइट. पेशेंट को तुम एक बार हक करते हो ना, डोंट वरी यू विल फाइन, ऐसे इतना बोलोगे ना, वी आर विथ यू, डोंट वरी वी आर विथ यू. उनका 90% बीमारी है ना निकल जाती. रियली आई एम टेलिंग, आई मीन इट. तो जो सपोर्ट ग्रुप्स है ना, प्लीज कम आउट एंड टॉक, शेयर, शेयर इन द ग्रुप. बताओ तुम्हें तकलीफ क्या है. बताने में हम लोग किसी को कुछ नहीं बताएंगे, हमारा ये प्राइवेट ग्रुप है.
इट विल नॉट गो आउटसाइड कि आपके रिलेटिव में जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे, आपको पूछा अगर कोई चीज बाहर नहीं जाएगा, बट प्लीज कम एंड शेयर योर प्रॉब्लम्स, वी आर देयर टू हेल्प यू आउट। अभी फंड वाइज भी होता है, सपोज हमारे 200 ग्रुप है, 200 जन के ग्रुप है, एक जन भी 1000 4000 भी निकालेंगे ना, लेकिन उनका एक कीमो हो जाता है। कम एंड शेयर ना, कम, अदरवाइज हाउ विल कम टू नो यू आर इन प्रॉब्लम, आपका हेल्थ से क्या इश्यू है। छुपाओ नहीं, छुपाने से क्या, क्योंकि आपने कोई दारू नहीं पिया, आपने कोई सिगरेट नहीं पिया, आपने किसका मर्डर नहीं किया, तो क्यों डरते हो आप? ये तो बीमारी है, बीमारी किसी को भी होगा, मुझे भी हुआ। लाइक सिर्फ कभी कभी अपने मन को हल्का करने से भी काफी या रिलीफ मिलता है जी। रिलीफ मिलता है, और अपने क्या हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं ना, यू बिकम ऑल राइट। मैं जब भी जाती हूँ स्लम एरियाज में, मैं मोस्टली ढूंढती हूँ स्लम एरियाज में कैंसर पेशेंट्स है क्या नहीं, क्योंकि ग्रुप वाले को तो बहुत जन मोटिवेट करते हैं। व्हेन आई गो एंड सिट विद देम, आप बिलीव नहीं करें, उनके कप में मैं चाय पीती हूँ और आई हग देम, और मैं बोलती सब कुछ ठीक हो जाएगा, डोंट वरी, आई एम देयर ना, आपको मेरे जैसा बनना है ना, बनना है कि नहीं? बोलता हाँ मैम आपके जैसा बनना है, ठीक हो जाओ, दवा लो, खाओ पियो, कभी भी कॉल करो, मस्त रहो। सो दे आर सो हैप्पी। इतने पेशेंट्स है जो निकल गए इसमें से। बोलता मैम आपने हमको बहुत हेल्प किया। मैं बोली नहीं, डोंट टेल एनीवन, किया मन में रखो, आप दूसरों को मोटिवेट करो ऐसा। वाई आई गो टू स्लम एरियाज, क्योंकि वहां कोई नहीं चाहता है, गंदगी होती है, भले तुम मास्क पहन के जाओ ना। तो सपोर्ट ग्रुप को यही कहना चाहूंगी, कम आउट, ओपन योर हार्ट, टॉक टू द पीपल, टॉक टू योर ग्रुप, शायद आपकी आशा की किरण जाग जाएगी और आप ठीक हो जाओगे। जो 1 साल लगता है ना ठीक होने के लिए, शायद आप 6 महीने में ठीक हो जाओगे। एंड आई गारंटी यू, इफ दे ओपन और शेयर विथ यू, और हम मिले भी कभी मुंबई वाले, एक हक भी किया, हमसे होता है उतना हम हेल्प करेंगे। यू नो, छोटे छोटे बूंद बूंद करके बनती है ना, घड़ा भरती है, राइट? इस तरह उनका हेल्प हो जाता है, क्योंकि हम तो 1000 रुपया 500 रुपया कहीं भी फ्रूट में भी खर्चा कर देते हैं, ये करते हैं। अगर हम सब मिलके किसी को जरूरतमंद को भी किया, तो कहाँ से कहाँ लाइफ पहुंच जाएगी। और वन हग इज रिलीजिंग द हार्मोन्स, हैप्पीनेस का हार्मोन्स। मुझे भी खुशी होती है, मुझे भी गूज़बम्स आते हैं जब मैं उसको हग करती हूँ। और कभी कभी फाइनेंशियल नीड्स तो पूरी हो जाती हैं, बट इमोशनल नीड्स पूरी नहीं हो पाती हैं। So that's why they have वो to इमोशनल नीड्स के लिए आई बिलीव सपोर्ट ग्रुप इज वेरी इंपॉर्टेंट. Friends like Anjali ji, me, and there are many survivors like us. So even if there is a critical situation and you will see us, you will connect. We are not superhumans, but you know, we can motivate you, we can listen to you, and you can feel, oh, there is someone call away available for us to listen and hear a vent out. That helps a lot. वो अकेलापन महसूस होता है ना, उससे ज्यादा तकलीफ होती है। कम आउट, मैं तो बोलती कम ऑन, सपोर्ट ग्रुप में आ जाओ, अपना दिल को खोलो और शेयर करो। अगर आपको लगता है मुझे शेयर नहीं करना, सुमन जी को शेयर करो, दूसरा कोई भी फ्रेंड है, और एवरीबडी विल रिप्लाई यू। ग्रुप में क्या होता है, सब जवाब देते हैं और सब पॉजिटिव होते हैं। एवरीबडी स्टैंडिंग, सी वी आर कैंसर सर्वाइवर्स, वी स्टैंड फॉर सर्वाइवर्स एंड पेशेंट्स, रिमेंबर दैट। यू आर फैमिली मेंबर्स, ये हमारा फैमिली मेंबर है। जब मैं कहती हूँ है, हमारी खुद की कम्युनिटी है, हमारी कम्युनिटी है, मैं बोलती मेरी फैमिली है वो लोग, वी आर वर्किंग फॉर देम। सो कम आउट गर्ल्स, कम ऑन टॉक, ऐसा छुपाओ नहीं, कोई शर्म की बात नहीं है। वी हैव नॉट डन एनीथिंग रॉन्ग, उल्टा हम लोग आपको मोटिवेट करेंगे, आपको हेल्प करेंगे, हम तो मेकअप करना भी सिखा देंगे आपको, डोंट वरी। और अगर पास में तो मैं कीमो भी ले जाऊं आपको साथ में, सो वी आर स्टैंडिंग फॉर दैट ऑल्सो। हम तो हमारी जान दे देंगे कैंसर पेशेंट्स और सर्वाइवर्स के लिए, रियली आई एम टेलिंग सुमन, आई मीन इट। आई नो दैट। और मैं जिस तरह सस्ती गवर्ती डांस वांस करती ना, इनके लिए करती हूँ, I know. उनको बताना चाहती हूँ, अगर मैं कर सकती हूँ, आई एम 61 years old, 61, आप लोग तो छोटे भी होंगे ना, तो आप कहाँ से कहाँ निकल जाओगे। मैं 10 साल रहो, 5 साल रहो, आपका तो छोटी उम्र है, आप तो आगे भी निकल जाओगे, और ये प्रोफेशन आप आगे भी लेके जा सकते हो। मुझे टीचिंग की इतनी ऑफर आती है डांस की, लेकिन मैं बोलती नहीं, मैं सिखा नहीं पाती, मेरे में वो पेशेंस नहीं है, मैं सिखा नहीं सकती। मैं अपनी खुशी के लिए करती हूँ, मैं कमाने के लिए नहीं करती। I always tell, मैं अपनी खुशी के लिए, अपनी बॉडी के लिए, मेरे सर्वाइवर्स के लिए बताती हूँ। And the main agenda of your life is to motivate other cancer survivors, the women who have one breast and they feel very complex, and you want to make them feel they are beautiful, they are complete, they have strength and dignity, they can dance, they can act, they can swim, they can do everything in their life, be it one breast or two breast or be it what. Yes, right, very true, yeah, very true. So thank you so much, Anjali ji. Thank you so much for being here and
taking out time. Before we wind up, और भी कुछ कहना चाहेंगी, और next phase आप क्या plan कर रही हैं? नेक्स्ट अभी तो सोच रही हूँ बस इंटरनेशनल लेवल पे जाना था, बट अभी मैं अभी दादी बनने वाली हूँ थोड़े दिन में। Congratulations. सो थोड़ा बिजी हूँ ये तो 2-3 महीना। आफ्टर दैट आई विल बी गोइंग फॉर इंटरनेशनल लेवल। जाना था, उसको पोस्टपोन कर दिया, और जूली का भी अभी आया था, दैट आल्सो आई पोस्टपोन। नीता जी को मैंने बता दिया अभी 3-4 महीना मैं ड्रॉप ले रही हूँ, बट माय डांस इज कंटिन्यू, डांस एंड एक्सरसाइज, दिस थिंग्स आर कंटिन्यू। बाकी जो पार्ट लेना है मे बी आफ्टर दिसंबर और जनवरी आई विल डू दैट, बट डेफिनेटली आई विल डू समथिंग न्यू नाउ, और आगे कुछ करना चाहती हूँ। नेशनल लेवल तो मिल गया, अभी इंटरनेशनल के वेट कर रही हूँ। अभी पिक्चर बाकी है, अभी तो ट्रेलर ही है। और अपना शोल्डर को ब्रॉड रखना चाहती हूँ, ब्रॉड शोल्डर, स्माइलिंग फेस एंड पॉजिटिविटी सबको फैलाना चाहती हूँ। एंड लव यू ईच एंड एवरीवन, ऑलवेज यू कैन कांटेक्ट मी, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। एनी प्रॉब्लम, कुछ बात करना है, कुछ रील बनाना, तो भी आ जाना मेरे साथ। I will be very happy if my cancer patients will come with me, you know. Wow. उनको थोड़ा enjoyment कर सकते हैं। मेरे घर में always they are welcome. कभी gathering रखना है, they can come always. I am for there. उनके लिए हमेशा हूँ। सुमन आपके लिए भी हमेशा हूँ, आप तो जानती है। आप भी बहुत अच्छा डांस करती हो। I have seen your dance also. Life is beautiful, और हमेशा life beautiful होना चाहिए। My life is very beautiful, and thank you, cancer. You taught me what is life. I came to the value of life after cancer. Me time निकालती हूँ मैं अपने लिए। जो आपने इतने साल नहीं निकाला, वो अब आप निकाल के निकाल रही है। So you're fulfilling all your dreams. And I fulfill all my dreams. Yes, मेरा जो passion है, सब कुछ हो रहा है, अच्छी तरह हो रहा है। By the grace of God, your blessing, और मेरे cancer patients and survivor का भी blessing मेरे साथ हमेशा है। And I love the people. I love my family, my cancer survivors and my cancer patients. हिम्मत मत ना आना, जिंदगी में आगे बढ़ना है। तू बहती धारा बन जा, फिर दुनिया से डोल, एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। हमेशा याद, ऐसा जिंदगी जियो कि लोग तुमको याद करें। Wow, so beautiful words. Thank you so much, Anjali ji, for coming live, for sharing your whole heart and speaking so boldly. It takes a lot of courage and with a lot of boldness. And you were like so down to earth to speak about your challenges and how positively you kept handling things. I know it must be not easy for you, the way you are saying now, smiling, but the way you went through and the way you overcame and you explored all the possibilities to enjoy the life into the fullness and keep motivating. And I know आप जो भी कर रही हैं वो आप सिर्फ इसलिए कर रही हैं ताकि cancer diagnosed cancer patients and survivors motivate हो सके, and that is amazing. आपने अपनी challenges को ओवरकम करके आज आप लोगों को इंस्पायर कर रही हैं. थैंक यू सो मच फॉर दैट. एंड फ्रेंड्स, एज आपने देखा कि मैं यही बोलूंगी, हम लोग कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, ना अंजलि जी, ना सुमन सिंह, ना अदर पीपल लाइक हरते, सुचांकी, अंबिका. वी ऑल आर सर्वाइवर्स. जो मैं कुछ नाम गिन रही हूँ, बट ईच वन ऑफ अस, हम लोग कॉमन लोग हैं, हम लोग आम आदमी है. पर शाहरुख खान का डायलॉग है ना, डोंट अंडर एस्टिमेट द कॉमन मैन, यू नो. तो डोंट अंडर एस्टिमेट कैंसर डायग्नोस्ड एंड सर्वाइवर्स एंड the people who are into this journey, conquerors. So हम लोग कॉमन है, पर हम लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अपने challenges. तो मैं आप लोग से भी यही, I will request all the members in the group, please come forward. I know it is tough, I know it is not easy, but दो ऑप्शन है, या तो रो के इसको सामना करें या हंस के. तो लेट्स, जैसे कि मैं आपको एक वाइंड अप करने के पहले बोलूंगी, जो ईगल होता है, ईगल बर्ड, एंड इट इज माय फेवरेट बर्ड, और हमारे फेथ के हिसाब से भी ये काफी सिंबॉलिक है. जब ईगल बीमार होता है तो उस कोई कोने में चला जाता है और उसके एक एक पंख गिरते हैं, और फिर वो अपने नए पंखों के उगने का इंतजार करता है. और जब उसके नए पंख आते हैं तो वो एक नई उड़ान के साथ आसमान की ऊंचाई को छूता है. और कैंसर हमारी जिंदगी में कौवे की तरह है, जो कि ईगल से कोई पंगा नहीं लेता. नोबडी टेक्स एनिमिटी, बट
crow days, cancer is like that. और वो ईगल के ऊपर आके बैठ जाता है और उसको वो बॉदर करता है. But that time eagle doesn't get bothered. It takes another height, more higher it goes, and it makes sure that the oxygen level gets low for crow and crow falls. That is how the cancer should be in a life. So it may come as a crow in a life, cancer crow, but let's take a new height, new flight, and make sure that the cancer drops down and we become a winner. So friends, I'll keep coming with an inspiring stories like this, like Anjali ji, and I will request all of the members to please come forward and feel free to connect with us to get motivation or get any kind of information. Survivors like Anjali ji, Suchanki, Ambika, and many survivors are there in our group to motivate you to create positivity in you. This group is supported by Live Long 365. Live Long 365 is a health and wellness platform which is there to assist group members in their cancer journey. In case if they require any report validation or treatment validation, we are there with various experts. We have our own app, Live Long 365. You can download and you can take the help and assistance of the expert. This is an optional help because a support group is incomplete without the expertise, survivors, and members. So I'll keep coming, and till then, love you and be inspired, stay inspired, and do well in your journey. Signing off. Thank you, Anjali ji, once again. Thank you so much. Thank you so much for being here. Thank you so much. Thank you so much.